Good morning. Hello. Yes, Good sir. morning, sir. Good morning. Screen is visible. Sound Yes, is sir. Clear as sir. sounds like. Yes, So sir. today I am starting with the integumentary system. Okay. Yes, You sir. have already seen the integumentary system major organs and functions. Major organs are skin, hair, sweat glands, nails, and main functions are protects against environmental hazards because it covers the whole body surface, helps to regulate body temperature. How it does we'll discuss later on other slides, and it also provides sensory information, that is information of pain, information of touch, information of hotness. These all sensory informations are carried out through the skin into the central nervous system. So how it occurs, I'll discuss in later slides. So what is integumentary system? Integumentary system, you have seen, it consists of skin and its accessory structures. Skin is the main. Accessory structures are hair, nails, sebaceous glands, and sweat glands, including the hair. Hair is the plural word. It is not written hairs. Hair is the plural. Singular, plural, दोनों यही है. Including the hair. So you should not write hairs. Okay? It is hair, nails, sebaceous glands, and sweat glands. So skin is the exterior covering of the body. It weighs more than 6 pounds, about 3.54 kg. पूरी बॉडी की स्किन का वेट ये इतना होगा करीब. It covers more than 3000 square inches, or you can say 2 meter square area. 2 meter square area it covers. It is the largest organ of the body. It is supplied with the blood vessels and nerves. So it covers the whole body. Weight is about 3.5 to 4 kg, or 6 pound you can write. It covers more than 3000 square inches or 2 meter square area in the adult. It is supplied with the blood vessels and nerves. So again, skin is the largest organ of the body and serves to protect against injury, protects against the sun ultraviolet rays. सन की अगर अल्ट्रावायलेट रेस अंदर के बॉडी इंटरनल ऑर्गन्स पे पड़ेंगी तो दे विल हार्म. So it protects against the sun ultraviolet rays. It prevents entry of harmful microorganisms. All the organs, if they will be exposed without skin, so what will happen? All the microorganisms will infect. So it prevents the entry of harmful microorganisms to inside organ. It maintains the proper internal body temperature. Internal body temperature is maintained by the skin. It excretes waste materials through the perspiration
And how it does, I'll show you in other slides. Function as a sense organ. It also functions as sense organ because when skin you touch, you feel the sensation inside the central nervous system. So functions as a sense organ. Okay, you have written. Everyone has written. Yes, sir. Okay. So it provides protection. It provides invasion of the bacteria. Harmful agents नहीं जाते. It prevents the injury. It exhibits excessive loss of water and electrolytes. Excessive loss नहीं होने पाता water और electrolytes का. It also produces protective pigmentation. पिगमेंटेशन करता है बॉडीज में. इससे क्या होता है, एक्सेसिव एक्सपोजर नहीं होता सन से. तो इस तरह से इट प्रोड्यूसेस बॉडी सप्लाई ऑफ विटामिन डी. इट प्रोड्यूसेस बॉडी सप्लाई ऑफ विटामिन डी. D. When the body is too hot, the blood vessels in the skin dilate. They bring more blood to the surface for cooling by radiation. How it maintains the body temperature? This is the process. When body is too hot, the blood vessels in the skin dilate. That brings more blood. That brings more blood to the surface for cooling by radiation. At the same time, sweat glands secrete more sweat that cools the body when it evaporates. When evaporates, sweat evaporates, it causes cooling of the body. The skin regulates body temperature. Body is too cold. जब बॉडी कोल्ड होती है तो भी रेगुलेट करती है. तो क्या होती है, ब्लड पहले हॉट पे डायलेट हो गई थी, इस समय कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है. मोर हीट कैरिंग ब्लड. आवाज क्लियर नहीं आ रही. आवाज नहीं आ रही है, कहीं ऑडिबल नहीं है आवाज. सर है. Sir, किसी को आवाज आ रही है?
किसी को आवाज आ रही है क्या? अरे आवाज आ रही है, सर नहीं है लेकिन अभी। सर नहीं है, सर लेफ्ट हो गए हैं। बैठे रहना तो देख लें। साउंड आ रही है आपको? यस सर। यस सर। हाँ, दोबारा से कनेक्ट किया, नेट की प्रॉब्लम हो रही है। मॉर्निंग में सेशन लिया तो नेट थोड़ा लगता है गड़बड़ हो गया उसमें। So I was talking when the body is too hot. स्क्रीन मिल रही है आपको? स्क्रीन देख रहे हैं? स्क्रीन और Yes, साउंड दोनों, साउंड भी आ रही? यस सर। When the body Yes, sir. All clear. when the body is too hot, what will happen? Blood vessels of the skin will dilate. और जब बॉडी ठंडी होगी, when skin is temperature is low, what will happen? Skin blood vessels will constrict. So this will cause, when body is too hot, blood vessels are dilating. This will do? Sweat gland will secrete more sweat, and when it is evaporated, body will feel cool. And when it is constricted, it will allow heat carrying blood to circulate the muscles and organ. That means heat will be
conserved. So this is the process how the skin maintains the temperature. Skin provides sensations. It contains millions of the nerve endings. All the nerve endings are in the skin. I'll show you the diagram in next slides how it contains millions of the nerve ending, which contains the receptor for pain, receptor for heat, receptor for cold, and receptor for the pressure. These are all sensations: pain, heat, cold, and pressure. When stimulation occurs, nerve impulses are sent to cerebral cortex of the brain, and brain then triggers any necessary response. Suppose you have been touched with a very hot material. Sensation is carried to the central nervous system through these nerves. Then what response from the brain will come? That response will be your muscles will act to remove the part of that body. So you remove your hand from that material. It means brain triggers the necessary response. अगर बहुत गर्म चीज छू ली है तो ब्रेन से रिस्पॉन्स क्या आएगा? मसल में एक्शन होगा और वो हाथ वहां से हट जाएगा. तो इस तरह से रिस्पॉन्स हो जाता है, सेंसेशंस जो पहुंचते हैं ब्रेन में. Now, skin has got 3 layers. You make this diagram. Skin has got 3 layers. This much layer is being shown. This is the epidermis. You don't make this cube-like structure. You simply make this structure जो सामने दिख रहा है. So this much is the epidermis. From here to this area, it is the dermis, and below the dermis is the layer known as hypodermis. This is hypodermis. So it is the first layer, 3 layer hai: epidermis, dermis, and hypodermis. You are making the diagram, or you have taken the snap? Hello? Yes, sir. You are making the diagram or have taken a snap? पिक ले ली है या आप डायग्राम सर बना पिक ले ली है. ओके. सो एपिडर्मिस, दिस मच लेयर, वही डायग्राम यहाँ पे छोटा करके दिखाया है. इट इज द आउटर मोस्ट स्किन लेयर. इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल सब लेयर्स. एपिडर्मिस में कुछ सब लेयर्स भी होती हैं. आई शो इन द नेक्स्ट स्लाइड. Top layer is known as stratum corneum. I am showing that diagram. Top layer is the stratum corneum. ये वाली layer है this much. Skin has 2 layers, epidermis and dermis. The epidermis actually has 4 strata. Epidermis में 4 strata होते हैं. Stratum corneum is the outermost strata of the epidermis. Stratum corneum. यहां तक ये सब पूरा क्या है? स्ट्रेटम कार्नियम. इट इज आउटर मोस्ट स्ट्रेटा ऑफ द एपिडर्मिस. इट इज मोस्टली ऑफ डेड सेल्स filled with protein substance called keratin. It is filled with the dead cells filled with the protein substance known as keratin. It is thicker on the soles of the feet and the eyelids where there is less pressure. तो eyelids में थिक होती है और सोल्स में थिक होती है. Now second layer is stratum lucidum. Second layer is stratum lucidum. It is translucent layer lying directly beneath the corneum. Stratum corneum से, ये stratum corneum है, यहाँ पे cells, ये सब dead cells हैं. ये सब डेड सेल्स हैं. केराटिन इसमें है
और इसके नीचे दिस लेयर इज द स्ट्रेटम ल्यूसिडम. It may not even exist in the thinner skin. Cells in this layer are also dead or in the process of dying. या तो ये जैसे ये डेड है सेल्स, वैसे ही या तो ये भी प्रोसेस ऑफ डाइंग में है. तो इट इज द सेकेंड लेयर, स्ट्रेटम ल्यूसिडम. नाउ स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, थर्ड लेयर. इट इज द लेयर ऑफ सेल्स स्टार्टिंग टू डाई. यहाँ से स्टार्टिंग टू डाई शुरुआत होती है. देखिए इसमें आपको सेल्स में न्यूक्लियस भी दिख रहा है, मगर परफेक्ट नहीं है. न्यूक्लियस के भी स्ट्रक्चर परफेक्ट नहीं है. यहाँ पे तो न्यूक्लियस गायब ही हो गया, सेल में न्यूक्लियस ही नहीं है बिल्कुल, और जो सेल के कंटेंट्स हैं वो डिस्पर्स हो गए हैं. तो ये प्रोसेस ऑफ डाइंग, जैसे जैसे ये ऊपर लेयर आती जाती है प्रोसेस ऑफ डाइंग शुरू हो जाता है. दे आर द प्रोसेस ऑफ केराटिनाइजेशन. इसको कहते हैं प्रोसेस केराटिनाइजेशन. जैसे आप देखते हो ना, स्नेक की तो पूरी पूरी खाल अलग से निकल आती है, मगर हम लोगों में पूरी खाल नहीं निकलती, मगर थोड़ी थोड़ी ये जो केराटिन निकलता रहता है. तो जब आप बात करते हो या रगड़ के आप करते हो स्किन, तो उससे क्या होता है, जो ऊपर की केराटिनाइज्ड स्किन है वो सब निकलती जाती है. ये फाइब्रस प्रोटीन है, सिमिलर टू द दैट ऑफ हेयर एंड नेल्स की. हेयर और नेल्स में जैसे होती है वैसे ही है, सिमिलर. सो स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, पहले थी स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम ल्यूसिडम दूसरी, और तीसरी स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, और लास्ट की फोर्थ स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम. जर्मिनेटिवम, तो जर्मिनेटियम वे है जहां से ये सेल्स, ये जर्मिनेटियम है, यहाँ से सेल्स ये बढ़ती, जैसे ऊपर बढ़ती जाती हैं बाहर की तरफ, वैसे ये सेल्स डेड होती जाती हैं. केराटिन इसमें डिपॉजिट होने लगता है, जो प्रोटीन है वो डिपॉजिट होने लगता है जो केराटिनाइजेशन करता है. और यहाँ तक जर्मिनेटम में तक न्यूक्लियस बहुत अच्छा है. इसी से इन सेल्स का जब ये न्यूक्लियस और कंटेंट्स गड़बड़ होने लगते हैं, ये बाहर की तरफ बढ़ने लगती हैं, यानी प्रोसेस ऑफ डाइंग शुरू हो जाती है. स्ट्रेटम जर्मिनेटम इज द कंपोज्ड ऑफ सेवरल लेयर ऑफ लिविंग सेल्स. इसी में केवल लिविंग सेल्स होती हैं. इट इज कैपेबल ऑफ सेल डिवीजन, और इनसे क्या होता है, सेल डिवीजन होता है. यहाँ तक सेल डिवीजन इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियस है, पूरे सेल के कंटेंट्स हैं, तो ये क्या है, लिविंग सेल्स हैं, इसमें डिवीजन होता रहेगा. द पिगमेंट दैट गिव्स कलर टू द स्किन मोर एबंडेंट द मेलानिन, इसमें होता है. इसी में, इसी जर्मिनेटम में ही वो कंटेंट होता है जो हमारी स्किन को पिगमेंटेशन देता है, उसका नाम है मेलानिन. इसमें जितना ये डीपर मेलानिन होगा, जितना डीपर होगा मेलानिन, उतना वो पर्सन गोरा वाइट होगा, और जितना सरफेस की तरफ आ जाएगा उतना उसका कलर डार्कर होता जाएगा. तो मोर एबंडेंट द मेलानिन डार्कर द स्किन, जितना एबंडेंट होगा सरफेस में ऊपर तरफ होगा तो वो डार्कर होगा, और ये मेलानिन पिगमेंट कम होगा और नीचे होगा जितना, उतना वो लाइटर होगा. डैमेज टू दिस लेयर एज इन बर्न्स रिक्वायर्स स्किन ग्राफ्ट. अगर ये लेयर जो जर्मिनेटम वाली है लेयर, अगर ये डैमेज हो जाती है तो हमें जब बर्न वगैरह में जब डैमेज हो गई तो इसमें ग्राफ्ट लगाना पड़ता है. ग्राफ्ट माने अदर पार्ट से इसके लेकर के हमें लगाना पड़ता है, क्योंकि ऐसे हीलिंग नहीं हो सकती. सो दीज आर दी 4 लेयर्स, स्ट्रेटम कार्नियम, स्ट्रेटम लूसिडम, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम एंड स्ट्रेटम जर्मिनेटम. जर्मिनेटम. हाँ, चारों लेयर्स लिख लिया आपने? यस सर. Stratum, first time again repeating, stratum corneum, stratum lucidum, stratum granulosum और stratum germinatum. So these are the 4 layers in the epidermis. Now coming to the second layer, that is dermis. Dermis is beneath the epidermis and is composed of connective tissue.
इट इज कंपोज्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, यानी इसी में सबसे ज्यादा जो स्ट्रक्चर्स होते हैं सारे डर्मिस में ही होते हैं. It consists of connective tissue which contains lymphatics, nerves, nerve endings, blood vessels, sebaceous and sweat glands, elastic fibers and hair follicle. So you see, ये तो अगर आप केवल इतना ही देखें सामने सामने या इतना, ये तो सब चार तो दिखाया गया है. स्ट्रक्चर इज मेनली दिस वन. ये ऊपर की एपिडर्मिस हो गई विद ऑल द 4 लेयर्स. नाउ दिस इज द डर्मिस. दिस इज द मेन पार्ट. इट कंटेन्स लिम्फेटिक्स, नर्व्स, यहीं से नर्व्स होती हैं, जाती हैं, निकलती हैं. नर्व एंडिंग्स यहीं पे होती हैं. ब्लड वेसल्स होंगी इसी में. सिबेशियस एंड स्वेट ग्लैंड. सिबेशियस ग्लैंड्स वो होती हैं जो ऑयल प्रोड्यूस करती है, स्किन को मॉइस्ट और ऑयली रखती है. और स्वेट ग्लैंड विच कॉजेस पर्सपिरेशन. इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, इलास्टिक फाइबर्स हैं. एंड हेयर फॉलिकल, दीज आर दी हेयर फॉलिकल. इनके रूट्स यहीं पर हैं. दिस इज द रूट ऑफ हेयर फॉलिकल एंड दिस इज द hair follicle. This is the hair follicle. So this is the hair follicle. It is erector pili muscle. Erector pili muscle माने जब ये कॉन्स्ट्रिक्ट करती है तो ये बाल खड़े हो जाते हैं. This is the connective tissue. Connective tissue. So this all structure is the dermis. Dermis is divided into 2 layers. ब्रॉडली जैसे 4 लेयर थी एपिडर्मिस में, वैसे डर्मिस में 2 लेयर हैं. एक अपर वन इज नोन एज पेपिलरी लेयर, पैप, और दूसरी रेटिकुलर लेयर. ये देखिए डर्मिस, दिस इज द डर्मिस. यहाँ से लेकर के यहाँ तक डर्मिस है. पैप में ये जो है दिस डर्मिस का ऊपरी वाली लेयर है. ऐसे इंप्रेशंस दिख रहे हैं. ये दिस इज द पेपिलरी डर्मिस and this is the reticular layer, reticular dermis. तो जितनी ये वायलेट कलर दिख रहा है ये पेपिलरी लेयर है, और ये जो पिंकिश दिख रही है ये रेटिकुलर लेयर. तो पैप लेयर में माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं, रिजेस बनाते हैं. तो जो ये आपके फिंगर्स में इंप्रेशंस आते हैं ना, फिंगर्स में लेफ्ट थंब इंप्रेशन वही सब लेते हैं आप अपने फिंगर्स में. देखिए जो आपकी रिजेस दिखाई दे रही हैं वो इसी लेयर के कारण बनती हैं. एंड दे आर डिफरेंट इन एवरी इंडिविजुअल. तभी आपका जब ये पहचान का निशान लगता है ना, अंगूठा, तो वो इसीलिए लगता है कि ये पेपिलरी लेयर के कारण बनता है. दीज आर द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, दे फॉर्म द रिजेस. और ये रिजेस सबकी डिफरेंट डिफरेंट होती हैं. दीज आर द फिंगर एंड फुट प्रिंट्स. ये आपके फिंगर में भी मिलेंगी और फुट की टोज में भी मिलेंगी. So this is the papillary layer. Reticular layer is beneath the papillary layer and white fibrous tissue that supports the blood vessels. So this is the epidermis, this is the dermis, and below this there is hypodermis. Hypodermis, it supports and nourishes, insulates the cushion-like skin. ये हाइपोडर्मिस जो है कुशन की तरह काम करती है, इसको सपोर्ट करती है डर्मिस और एपिडर्मिस को. ओके, द डर्मिस इज कनेक्टेड टू अंडरलाइंग टिश्यू बाय सबक्यूटेनियस टिश्यू. द सबक्यूटेनियस टिश्यू को ही हम क्या बोलते हैं? हाइपोडर्मिस. तो एपिडर्मिस, डर्मिस और थर्ड लेयर हाइपोडर्मिस. Hypodermis is composed of adipose. Adipose means fat. ये फैट जो है इसमें होता है फैट टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू. इट सपोर्ट्स, ये सपोर्ट करता है ऊपर के जो लेयर्स हैं उनको नरिश करता है, क्योंकि देखिए ये these are the blood vessels running in the hypodermis, and it act as cushion like, it act as cushion for these two layers.
So this is the hypodermis. डर्मिस की जो दो लेयर थी, डर्मिस की हमने ऊपर कैपिलरी लेयर बताई थी और नीचे रेटिकुलर लेयर आई। इट होल्ड्स मैनी कैपिलरीज। डर्मिस में बहुत सारी कैपिलरीज होती हैं, बहुत सी लिम्फ सेल्स होती हैं, नर्व एंडिंग्स होती हैं और सिबेशियस और स्वेट ग्लैंड्स होती हैं। सिबेशियस एंड स्वेट ग्लैंड्स होती हैं एंड हेयर फॉलिकल्स होते हैं। हेयर फॉलिकल्स ये सब डर्मिस में स्ट्रक्चर है। कोलेजन फाइबर्स आर फाउंड इन द कनेक्टिव टिश्यू and when the collagen fiber is stretched they form the striae मैंने लाइनिंग्स बनाते हैं। now hypodermis which is below the dermis found between the dermal layer and inner organ। ये जो डर्मल लेयर ऊपर की डर्मिस है ये हाइपोडर्मिस, और इसके अंदर कौन से हैं? इनर ऑर्गन्स। अब इंटरनल ऑर्गन्स कैसे होंगे? हाइपोडर्मिस के नीचे होंगे। हाइपोडर्मिस के ऊपर डर्मिस होगी और हाइपोडर्मिस से अंदर की तरफ क्या होंगे? इनर ऑर्गन्स होंगे। इट कंसिस्ट ऑफ द एडिपोज और फैटी टिश्यू। ये हाइपोडर्मिस में इसमें फैटी टिश्यू भी है, फाइबर्स भी हैं। फैटी टिश्यू प्रोटेक्ट द इनर ऑर्गन्स। अगर यहाँ पे फैट नहीं होगा तो इनर ऑर्गन्स का प्रोटेक्शन नहीं होगा, क्योंकि स्किन तो बहुत पतली पतली हो गई। एडिपोज टिश्यू डिपॉजिट होने से उसकी थिकनेस बढ़ गई एंड इट मेंटेन्स द बॉडी टेम्परेचर। जब थिकनेस बढ़ जाएगी तो ये बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर लेगी। और ब्लड वेसल्स और नर्व्स भी इसमें प्रेजेंट होती हैं। इट इज हियर शोइंग ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स भी इसी में होती हैं। सो दीज आर दी layers. Now coming to the accessory structure in the skin. Here is the thread-like structure formed by the group of cells that develop within a hair follicle or socket. Here is a thread-like structure. Hair कैसा है? ये thread-like structure है that is formed by group of cells and develop within the hair follicle. This is the hair follicle, or it is known as socket. Each hair has a shaft that is visible and the root is embedded in the follicle. ये follicle में इसकी root embedded है और ये shaft है, ये visible होता है। A pilomotor muscle is attached to the side of each follicle. ये जो मसिल है, ये हेयर है, एक पाइलोमोटर मसिल, ये मसिल अटैच होती है साइड में। अटैच टू साइड ऑफ फॉलिकल, इट इज स्टिमुलेटेड बाय स्किन इरिटेंट। कोई इमोशनल कंडीशन हो जाए या इरिटेंट लगा देंगे, टेम्परेचर के चेंज होने से बहुत ठंडा हो जाए, इट रिएक्ट्स बाय कॉन्ट्रैक्टिंग। और आपकी स्किन कैसी दिखलाई देती है? गूस फ्लैश। स्किन में जैसे आ रहा है ना, ये कोल्ड में अक्सर आप देखोगे ऐसा हो जाता है। जब इस मसिल के इरेक्शन होता है तो इसके कारण कैसा दिखलाई देती है? स्किन में ऊपर हल्के छोटे छोटे से दाने टाइप के, तो ये गूस फ्लैश की तरह हो जाता है। The base of each hair follicle is a bulb enclosing a loop of capillaries. इसमें जो ये है, इसमें एक loop of capillaries होता है जो इसको न्यूट्रिशन सप्लाई करता है। It provides nourishment to the hair. It is one of the few living part of the hair. इतना पार्ट ही लिविंग होता है, बाकी का पार्ट ये जो शेफ्ट है बाहर निकला है ये लिविंग नहीं है, तभी तो इसको आप कट कर सकते हो विदाउट एनी पेन। And this living part is responsible for the growth. अगर यहाँ पे ब्लड सप्लाई अच्छी नहीं है, तभी कहते हैं जब हेड का मसाज करते हैं ना, मसाज करने से ब्लड सप्लाई डेफिनेटली विल इंक्रीज in that area and that causes responsible for hair growth, because blood supply जितनी अच्छी होगी यहाँ से उतना अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा इसको पूरा कंप्लीट,
and then it will be strengthened. तो हेयर स्ट्रेंथन होंगे, अदरवाइज इनका न्यूट्रिशन ना हो, ब्लड सप्लाई अच्छी ना हो, तो ये बिल्कुल रफ हो जाते हैं, ड्राई टाइप के लगते हैं, दे बिकम्स रफ, दे डोंट गेट एनी न्यूट्रिशन, सो दे आर यूजुअली, तभी वो गिर जाते हैं। या सो हेयर में, हेयर का स्ट्रक्चर देखें, अगर क्या ट्रांसफर सेक्शन काटें तो बाहर की तरफ उसमें क्यूटिकल है, फिर कॉर्टेक्स है, और अंदर की तरफ ये मेडुला। तो अगर ट्रांसफर सेक्शन काट के देखें हेयर को, ये काफ़ी मैग्नीफाई किया हुआ है जिससे आप स्ट्रक्चर को समझ लें कि इसके 3 लेयर होते हैं, बाहर क्यूटिकल है, अंदर कॉर्टेक्स है, और सबसे इनर मोस्ट मेडुला। तो ट्रांसपेरेंट क्यूटिकल कवर्स द हेयर शेप। तो ये जो आपको ब्राउन दिखाई गई है, ये एक्चुअली ब्राउन नहीं होती है, इट इज ट्रांसपेरेंट, covers the hair shape like shingles on a roof, protecting it from the elements and chemicals from losing moisture. और ये क्यूटिकल इसका मॉइस्चर को ना अंदर का जाने पाए, इसलिए बाहर से चढ़ी होती है। और जब आप बहुत सारे शैम्पू ये सब चीज़ें इरिटेंट्स लगाते हैं तो यही क्यूटिकल डिस्टर्ब हो जाती है, एंड इट कॉजेस जो ये आपके केमिकल्स हैं दे रीच इनसाइड, और उसके बाद लॉस होने लगते हैं। तो कॉर्टेक्स प्रोवाइड मोस्ट ऑफ द हेयर वेट, इट कंटेन्स मेलेनिन, इसी में मेलेनिन होता है तभी काले होते हैं बाल, विच प्रोवाइड्स कलर टू द हेयर। स्टोर्स आयल्स प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी, इसी में आयल भी होता है तो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इलास्टिसिटी होती है। इट्स आल्सो एड शेप टू द हेयर, शेप मीन्स कर्ली होंगे या बिल्कुल स्ट्रेट होंगे, ये सब शेप देना इसी की बात होती है। व्हेन द क्यूटिकल इज डैमेज्ड एंड एक्सपोजेस द कॉर्टेक्स, अगर ये क्यूटिकल हट जाए, अगर एक्सपोज हो जाएगा कॉर्टेक्स, देन हेयर लुक डल एंड ड्राई। द मेडुला इज द इनर hollow core that runs थ्रू द लेंथ ऑफ द शेफ्ट, ये पूरा लेंथ की तरह शेफ्ट में, और जब एक दोनों हट जाते हैं कॉर्टेक्स और क्यूटिकल, ये बड़े थिन और ड्राई हेयर हो जाते हैं। इट आल्सो कंटेन्स glands, they are known as sudoriferous glands. Sudoriferous glands are also known as sweat glands. They secrete outward towards the surface of the body. जब सरफेस की तरफ सिक्रीशन देंगी और इनर साइड से नहीं देंगी, तो एक ही साइड में देंगी, दे आर नोन एज एक्सोक्राइन। और चूंकि सिक्रीशन देने के लिए डक्ट है इसमें, सो दे आर नोन एज एक्सोक्राइन। दे आर लोकेटेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन द बॉडी। टाइप्स ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड, दे आर द एक्राइन ग्लैंड, मेजर जो स्वेट ग्लैंड होती हैं एक्राइन ग्लैंड कहलाती हैं। सीबेसियस ग्लैंड होती हैं, दे सीक्रेट द ऑयली वैक्सी मटेरियल, या उसको सीबम बोलते हैं। एंड एक्राइन ग्लैंड मेजर स्वेट ग्लैंड होती है। एंड एपोक्राइन ग्लैंड, जिसका एग्जाम्पल है मेमरी ग्लैंड और ब्रेस्ट। सो टाइप्स ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड आर एक्राइन ग्लैंड, sebaceous gland and apocrine gland. Excretion of sweat gland is called diaphoresis. Diaphoresis एक प्रोसेस है जिसमें स्वेट ग्लैंड से पसीना ऊपर आता है और वहां से इवेपोरेट हो जाता है स्किन सरफेस के, दिस प्रोसेस इज नोन एज diaphoresis. So this much is for today. Any problem up to this in the integumentary system? I can revise again. Hello? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Any problem up to this? No, sir. Okay. You will give the attendance CR
विल गिव द अटेंडेंस ऑन दी स्क्रीनशॉट दे दीजिएगा। ओके सर। ओके सर। थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। ओके बेटा। स्टॉप कर दिए रिकॉर्डिंग को। हाँ स्टॉप कर दिए रिकॉर्डिंग। अब क्या करें? रिकॉर्डिंग की हो रही नहीं, स्टॉप कर दीजिए। और स्टॉप कर दिए रिकॉर्डिंग। हम्म। अच्छा ठीक है।